ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੁਸਨ ਸਿਹਾਲ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡੀਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਡੀਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਡੀਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ। 9:05 ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਤਰੀਏ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਸ ਬਿਨ ਦੁਖਨ ਲਾਗੇ ਨੈਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, 9:29 ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 9:29 ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:34 ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ। सेठी साहब जी ने सत्संग को आरंभ किया। उन्होंने कहा कि यह कलाम हज़रत सुल्तान बाहू जी का है। आप जी को बड़ी नमाजी के साथ नवाजा गया है। विचार करना है, हम सब जो मालिक में विश्वास रखते हैं अलग अलग तरीके से विश्वास रखते हैं। सच्चा रिश्ता हमारा अंदर जाकर जुड़ेगा। परमात्मा तो एक ही है और उसके मिलने का रास्ता भी एक है। मन के दायरे यानी काल के दायरे से हमें बाहर निकलना होगा। सबने अलग अलग नाम से तो बयान कर दिया है, लेकिन है तो एक। आज हम हज़रत सुल्तान बाहू जी का कलाम ले रहे हैं, ए तन रब सच्चे दा हुजरा। कि भाई ये जो इंसानी जामा है इसी से उसको मिल सकते हैं। ये इंसानी जामे में मालिक खुद वास करता है, मालिक कोई बाहर नहीं है। पा फकीरा चाहती हो। फिर उन्होंने ये समझाया कि भाई अंदर तो जाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी और तभी मिलाप होगा। स्वामी जी ने भी कहा है, अगर आपने अपने पिया को मिलना है तो शरीर के अंदर जाति को मारना पड़ेगा।
हमारी आत्मा का सच्चा केंद्र तीसरा तिल है। अपने मुर्शिद के कहने पर चलना है। फिर आप जी ने फरमाया बानी में से, आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्हस गुर विचारा। आप जी ने यह फरमाया कि हमें बड़ी गहराई से अंदर खोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमें बाहर नहीं मिलने वाला। फिर आप जी ने वाणी की मिसाल दी, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। हमें कुछ नहीं करना, बस ख्याल को इकट्ठा करने की ज़रूरत है जो फैला हुआ है। जो भी संत महात्मा आए हैं, हमें उनके उपदेश से जुड़ना है। जो वक़्त के गुरु हैं, इसका भेद सारा बताते हैं कि भाई आपने अपने ख्याल को तीसरे तिल के ऊपर लाना है। हमने अपने मन को भटकाया हुआ है। फिर आप जी ने एक कलाम से लाइन ली, दो जुल्फां दे विच नैन मुसल्ले। मुसल्ले किसको कहते हैं? तीसरा तिल। हमें अपनी सूरत को तीसरे तिल यानी सच्चे नाम से, सच्चे गुरु के दर्शन से जोड़ना है। और वो कब होगा? जब तीसरे तिल पे हमारा ख्याल इकट्ठा होगा। वहां पहुंचेंगे। अमृत पीना उसे ही कहते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी ना। आज जो दौलत का, पैसे का, ना जाने किस किस चीज का शौक पाले बैठे हैं आप, इसे साइड रखो और जो रूहानियत की दौलत है, जो आपके अंदर है, उस पर ध्यान दें। सिमरन भजन बड़े शौक से करना है। नैन मुसल्ले कहा गया है तीसरे तिल को, कि अपने ख्याल को तीसरे तिल पर जोड़ना है। फिर उसके बाद अगली लाइन पढ़ी गई कलाम की, अल्फ अल्लाह चंबेदी बूटी, मेरे मुर्शद मन विच लाई हो। बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है हमें। अल्फ अल्लाह चंबेदी बूटी यानी नाम की बूटी अंदर लगानी है। नाम की बूटी कैसे लगेगी अंदर? जब हम अपने सच्चे संत सतगुरु के पास जाते हैं, वो हमें नाम की दौलत देते हैं। उसे कहते हैं चंबे की बूटी। जब वो हमारे अंदर लग जाती है, देखो अगर हम कोई बूटा लगाते हैं, हम उसको पानी ना दें, ऐसे छोड़ दें लगाकर, क्या वो पलेगा? नहीं पलेगा ना। बूटा लगाएंगे, फिर उसको पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तभी तो वो बड़ा होगा ना। इसलिए अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी, इसका सारा मतलब निकाला गया है कि भाई ये सारी चीज़ें नश्वर हैं। जो नाम की दौलत संत सतगुरु ने आपके अंदर रख दी है, उसको जपने की ज़रूरत है। देखो कितनी बड़ी हमें मिसाल देकर समझाते हैं। जो इश्क हकीकी का जुनून है, जब वो अंदर आता है तो सब कुछ भूल जाता है। बस अल्फ अल्लाह चंबेदी बूटी ये अपने मन में लगानी पड़ेगी, फिर उसकी खुशबू फैल जाएगी। पूरा संत सतगुरु जीवों को तारने के लिए आता है, क्योंकि जब मालिक ने जीवों को तारना होता है तो वो इंसानी जामा लेकर आता है। हमें उनके हुक्म को सबसे ऊपर रखकर अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। गुरु अपने जीव को जब शरण में ले लेता है तो फर्ज तो हमारा बनता है ना। मेहनत तो हमें करनी है। शौक और चाहत ऐसी हो कि उसके बस नाम का नशा ही चढ़ा रहे। जब उनका नाम का नशा चढ़ जाता है, फिर सारे नशे फीके पड़ जाते हैं। फिर अवस्था क्या रहती है? रांझा मैं विच, मैं रांझे विच। इस तरह की अवस्था बन जानी चाहिए हमारी। फिर आगे फरमाते हैं, गुरु 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 गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। देखो कितनी बड़ी अवस्था बयान करते हैं। मेहनत करते हुए पौड़ी दर पौड़ी, पौड़ी दर पौड़ी चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। फिर जब स्वाद आना शुरू होगा, अंदर आनंद आएगा। एक शरीर सरवर है संतो, नाम स्नान लिवलाई। परमार्थ का मार्ग करनी का मार्ग है, बातों का मजमून नहीं है। संत जो कहते हैं उनके हुक्म को मानना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो क्या फ़ायदा? खाया पिया, समय खराब किया, कोई फ़ायदा है उसका? करनी में लगना है। उस मालिक के आगे झूठे नहीं पड़ना है। काल के दायरे से हमें बाहर निकलना है। करनी करनी है, यानी जब हम करनी करेंगे, अंदर जाएंगे, नाम 24 घंटे हमारे अंदर चलता रहेगा। फिर वो अवस्था बन जाएगी कि अपने आप चलता रहेगा। अंदर चाहती मारो, रोम रोम में कलमा यानी नाम चलता रहे। नशा सिर्फ उसका हो, वो तेरे
जीवन का आधार बन जाना चाहिए। फिर खुद शब्द धुन अंदर शुरू होगी। विचार तो करो। फिर आगे सेठी साहब जी ने अंत में सत्संग को ख़त्म करते हुए कहा, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। 10:20 पर सेठी साहब जी ने सत्संग को ख़त्म किया। फिर उसके बाद 10:21 पर बाबा जी ने दर्शन देना शुरू किए और पहला शब्द पढ़ा गया, धारणा का शब्द जो संगत ने साथों साथ पढ़ा, दया करो राधा स्वामी प्यारे, दया करो। फिर दूसरा शब्द पढ़ा गया, धन सो बेला जित दर्शन करना। फिर तीसरा शब्द पढ़ा गया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। उसके बाद हमारी पंगत को दर्शन देकर बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद भी शब्द पढ़े होंगे लेकिन वो हमें नहीं पता है। तो ये आज सारा माहौल रहा और संगत भी आज काफ़ी ज़्यादा नहीं आई हुई थी लेकिन ठीक ठाक थी। अगले भंडारे में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा। तो आज का ये एटमॉस्फेयर जो भी डेरा ब्यास का ये रहा। तो मैं आप जी समूह साथ संगत से बेनती ज़रूर करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे इसी चैनल के ऊपर शाम को आपको सवाल जवाब भी मिल जाएंगे, वो भी ज़रूर सुनिएगा। कल की एटमॉस्फेयर और सवाल जवाब हमने ये लास्ट में आपको वीडियो शो हो रही होंगी, यहाँ पे क्लिक करके सुन सकते हैं आप। मैं आपका दोस्त हुसैन सिहाल, सभी को राधा स्वामी।